Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. Today, we have scenario number 7. A 32-year-old woman had persistently raised blood pressure measurements over the past 6 months. Her systolic blood pressure readings had ranged from 158 to 170 millimeter of mercury, and diastolic blood pressure readings between 90 to 98 millimeter of mercury. She was asymptomatic. She was not on any medications, including oral contraceptive pills. There was no past medical history of note or any family history of hypertension. Physical examination did not reveal any abnormalities other than a BP reading of 160 by 96 millimeter of mercury. Blood urea and electrolytes were normal. What's the most possible cause for her hypertension? Essential hypertension, primary hyperaldosteronism, Cushing syndrome, renal artery stenosis, or adult polycystic kidney disease. It's polycyclical likha gaya. It's adult polycystic kidney disease. So today the topic of presentation is hypertension. Hypertension is a very important cardiovascular risk factor for ischemic heart disease, for peripheral arterial disease, and we have read this in aortic dissection as well. Basically, why do we decide these thresholds for hypertension? Hypertension is defined when the blood pressure rises the certain threshold. The different studies have been conducted and they have actually decided the optimal blood pressure, or they have specified some range of blood pressure for the optimal control, so that the risk of the cerebrovascular accidents and ischemic heart disease can be reduced. And plus, the cost and potential side effects of the therapy, these are less as compared to the benefits of the treatment that is given to the patient. तो बेसिकली आपकी ये जो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है, या कोई भी जो थ्रेशहोल्ड हाइपरटेंशन के लिए, जो थ्रेशहोल्ड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए जो थ्रेशहोल्ड डिसाइड की गई है, वो डिफरेंट स्टडीज कंडक्ट करके उन्होंने वो वाली रेंज उठाई जहां पर उन्होंने देखा कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को, और उसकी जितना कॉस्ट पेशेंट को हो रहा है, इसके अलावा उसको जितने बेनिफिट्स हो रहे हैं वो ज्यादा हैं उसकी निस्बत जो कि साइड इफेक्ट्स हो पेशेंट को, और ये वो थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर आप पेशेंट्स को जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं. डिफरेंट सोसाइटीज हैं हाइपरटेंशन की, जैसे ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी है, इसके अलावा हम अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी को भी पढ़ते हैं, हमारे पास जेएनसी गाइडलाइंस भी हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन है, देन वी हैव डब्ल्यूएचओ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन. तो इन सब का एक कंसेंसस है, और जो है इन सब का कंबाइंड कंसेंसस के मुताबिक जो डेफिनेशन है हाइपरटेंशन की, that is it is termed as optimal blood pressure when it is less than 120 and it is less than 80. It is termed to be normal when it is less than 130 and 80 equal to 85. We term it as high normal when it is in between 130 to 139 and between 85 to 89. तो optimal normal high blood pressure आप less than 120 से 139 तक जा रहे हैं, इसमें आप देखिए 10-10 का एक एड ऑन फैक्टर है, और यहाँ पर डायस्टोलिक में 5 है. जब हम हाइपरटेंशन को डिवाइड करते हैं तो इसके 3 ग्रेड्स हैं. ग्रेड 1 इज व्हेन 140 से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, दिस इज हाइपरटेंशन. डायस्टोलिक 90 से ज्यादा हो गया, दिस इज हाइपरटेंशन. अब अगर 140 to 159, दिस इज ग्रेड 1, एंड डायस्टोलिक्स 90 to 99. अब इसमें आप देखिए कि 10-10 एडिशन डायस्टोलिक में हो रही है और 20-20 की जो है सिस्टोलिक में हो रही है. 160 by 179 is grade 2, and when it is more than 180 it is grade 3 or severe hypertension. So what is basically the definition of severe hypertension? Severe hypertension is the grade 3 hypertension in which the systolic blood pressure is more than 180 and diastolic blood pressure is greater than 110. Then we have an entity that is termed as isolated systolic hypertension, in which the diastolic blood pressure is normal, but the patient is having merely only systolic hypertension. So grade 1 is more than 140 to 159 and grade 2 is more than 160. Basically, this isolated systolic hypertension is associated more to the cerebrovascular and ischemic heart disease and other complications, other cardiovascular complications in patient, and it has to be treated
treated irrespective of the diastolic blood pressure. So that's why isolated hypertension, systolic hypertension, is also an important entity. What is the pathogenesis of hypertension? Basically, many factors they contribute to the regulation of the blood pressure. इसमें जो RAS system है आपका, जो renin, angiotensin, aldosterone system है, वो बहुत important है. और कोई भी renal dysfunction होगा, peripheral resistance होगी, basal tone increase होगी, endothelial dysfunction होगा, autonomic tone increase होगी, insulin resistance होगी, या neurohumoral factors होंगे जिसके अंदर आपका ये सारा RAS system आ जाता है. In some may it can lead to the development of hypertension. Most of the cases may 90% of the cases may you don't find any cause of hypertension that is termed as essential hypertension, and whenever you are having a cause of hypertension that is termed to be secondary hypertension. So essential hypertension is the primary hypertension without any cause, and secondary hypertension in which you can you have determined some cause in the patients. And whenever a patient presents to you at a younger age, especially before 40 years of age, you have to think of some secondary causes, and you have to investigate the patient for secondary causes rather than just labeling the patient as essential hypertension. So you have to be very careful in the examination, and you have to offer some certain investigations. What are those investigations that are important in hypertension? We will discuss it in detail. Again, now we come towards some risk factors that are associated with hypertension. तकरीबन वही हैं जो coronary artery disease के साथ भी हैं. Cardiovascular risk factors में जितनी भी चीजें आती हैं, age is a strong risk factor. It increases with the passage of age. High salt intake is a risk factor. Heavy consumption of alcohol, obesity, and lack of exercise. These all are risk factors. So pathogenesis में ये risk factors पढ़ने की importance ये भी है कि whenever you are asked about the management of any disease, in the management of patient, you start with the lifestyle modification and then you jump towards the pharmacological treatments. Without lifestyle modification, only giving the patient therapies for diabetes, for hypertension is not a justice with the patient. So you have to address all these risk factors. और इसीलिए आपकी हिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हाइपरटेंशन में, जिसमें आप जो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ सिस्टेमिक इंक्वायरी सारी लेते हैं, उसकी पर्सनल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फैमिली हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, एंड एंडोक्राइन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सेकेंडरी कॉजेस को रूल आउट कर सकें. सर ड्रग्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रग इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी होता है. ठीक है. क्लिनिकल फीचर्स की बात करें अगर, तो हाइपरटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम एसिम्प्टोमेटिक होता है. ठीक है. अच्छा, एक चीज अपने जहन में रखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज इन आवर कॉमन प्रैक्टिस दैट पेशेंट प्रेजेंट्स विद एंजाइटी और प्रेजेंट्स विद पेन, और पेशेंट इज हैविंग फीवर, एंड वी चेक द ब्लड pressure at that time, and if at that time patient is labeled as having hypertension, this is not the real blood pressure reading, क्योंकि it is our normal sympathetic response. Anxiety में, fever में, whoever is doing these editing, kindly don't do this, these red lines. All right. तो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास फीवर या किसी भी डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में है, या इवन उसको हेडेक भी है ड्यू टू स्लीप डिस्टर्बेंस या एनी अदर कंडीशन, एंड यू आर चेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, इट इज रेज, यू डोंट लेबल द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर चेक करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, वो आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक जनरल सी बात है कि जब भी पेशेंट का आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो उसकी स्लीप पूरी होनी चाहिए, और पेशेंट का जो है मॉर्निंग का ब्लड प्रेशर, उसने कोई स्मोकिंग ना की हुई हो और कोई चाय वगैरह ना ली हुई हो विद इन 1 आवर, और उसके बाद जो है आप उसका ब्लड प्रेशर नोट करते हैं. उसमें आपने पेशेंट का हार्ट भी सही से रेस्ट किया हुआ होता है, और जो आपका ब्लड प्रेशर कफ है वो मोर देन 70% ऑफ द सर्कमफेरेंस को कवर करे, एंड देन यू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. ठीक है. फिर उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स भी हैं जहां पर हम किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन लेबल करने से पहले इन सारी चीजों को एड्रेस करते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन लेबल करने का मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग एक बीमारी आपने पेशेंट के साथ जो है अटैच कर दी है, एंड ही और शी हैज टू बी वेरी केयरफुल. अब वो एक कॉस्ट भी है कि उसको मेडिसिन भी खरीदनी है, उसको डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करनी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल लेबलिंग अ पेशेंट एज हैविंग हाइपरटेंशन. ऐसा नहीं होता कि
मतलब एक जैसे हमारी कॉमन प्रैक्टिस में है कि डिस्ट्रेस के साथ पेशेंट आया, उस वक्त की रीडिंग ज्यादा है एंड यू लेबल द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन. बेसिकली patients are asymptomatic, लेकिन एक BP check is advisable every 5 years in adults who are over 40 years of age to pick up occult hypertension. एक जो आपका asymptomatic hypertension है उसको diagnose करने के लिए above 40 years of age it is advised कि आप हर 5 year में एक blood pressure reading जो है patient की होनी चाहिए. अगर बिफोर 40 इयर्स ऑफ द एज आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, उसमें बाकी किसी भी डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर कुशिंग डिजीज है, कोन सिंड्रोम है, या फिर जो है कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, या लिडल सिंड्रोम है, या फियोक्रोमोसाइटोमा है, कोई भी चीज जो भी सेकेंडरी कॉजेज हैं जो कि हम सारी आगे पढ़ेंगे, उनमें पेशेंट्स आर मोस्टली सिम्टोमेटिक. और जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक. तो above 40 years of age, you have to check for the blood pressure of the patient once and then every 5 years. इसके अलावा देर आर समटाइम्स क्लिनिकल फीचर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. अभी कोई भी पेशेंट है हाइपरटेंशन का अगर आपके पास आता है तो उसकी पूरी A to Z सारी फिजिकल एग्जामिनेशन, सारी उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है. ये जो हम यूजुअली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एक रेडियो फीमोरल डिले देखते हैं, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा. तो कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर भी पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपरटेंशन एंड इट इज अ सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन. इसके अलावा enlarged kidneys in patients with polycystic kidney disease. एब्डोमिनल ब्रूई आपको बेसिकली उस वक्त मिलती है जहां पर भी कोई स्टेनोसिस है, ऑक्लूशन है, नैरोइंग है किसी भी वेसल की, तो वहां आपको ब्रूई मिलती है. तो अगर कोई एब्डोमिनल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो वहां पर आपको जो है रीनल ब्रूई मिल सकती है. एंड ये यहाँ पर इन्होंने आगे भी मेंशन किए हुए है कि एब्डोमिनल ब्रूइज may suggest renal artery stenosis and the characteristic facies and habitus of Cushing syndrome. You can see, मैंने आपको यही कहा कि जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके अंदर आपको मेनली कोई ना कोई सेकेंडरी डिजीज के सिम्टम्स मिल जाते हैं. वो फिर जाहिर है जितने हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम कुशिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा हम कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस के अंदर पढ़ेंगे. इसके अलावा आप रिस्क फैक्टर्स हाइपरटेंशन के जैसे कि सेंट्रल ओबेसिटी एंड हाइपरलिपिडीमिया. नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रल ओबेसिटी? आपकी जो ट्रंकल ओबेसिटी होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बंदा जो है उसके हाथ पांव मोटे हैं लेकिन एब्डोमेन इज फाइन, तो वो जो है उसका उसका रिस्क इतना नहीं है टू डेवलप हाइपरटेंशन देन अ पेशेंट हु हैज अ enlarged tummy, enlarged abdomen. Abdominal fat, central fat जो होता है आपका, it is a more risk factor for developing hypertension. और दूसरी चीज आपकी जो visceral obesity होती है वो भी अगेन रिस्क फैक्टर है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर है for the patient than those who are generally obese. Other signs may be observed that are due to be complications of hypertension, and these include signs of left ventricular hypertrophy. अब obviously patient को hypertension है for a long run. आप examination करेंगे, एक तो आपको second heart sound का जो aortic component है वो आपको loud मिलेगा. Pulmonary hypertension में आपको P2 loud मिलता है. Systemic hypertension में आपको aortic component जो है heart sound, second heart sound का वो loud मिलेगा. इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है एंड अ फोर्थ हार्ट साउंड. ओके जी. एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, पेशेंट चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का जब भी मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद द एट्रियल फिब्रिलेशन एज वेल. Severe hypertension can cause left ventricular failure in the absence of coronary artery disease. अगर coronary artery disease ना भी हो तब भी severe hypertension can lead to the failure. Hypertensive heart disease के patients आपके पास shortness of breath के साथ आ सकते हैं. और इसके अलावा फंडोस्कोपी की बहुत इंपॉर्टेंस है. एक हाइपरटेंसिव पेशेंट में अगर आप फंडोस्कोपी नहीं कर रहे, इट्स अ क्राइम. आपने जरूर उसकी फंडोस्कोपी करनी है. एक बेस लाइन फंडोस्कोपी लाजमी है ताकि उसमें देखा जा सके कि रेटिनोपैथी कितनी किस हद तक है, पेपिल एडिमा है नहीं है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं जो कि रिवर्सिबल होती हैं एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट.
ऑल राइट, इसके अलावा जो है आपके पास देयर मे बी एविडेंस ऑफ जनरलाइज्ड एथेरोमा और स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस सच एज एओर्टिक एन्यूरिज्म्स, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और स्ट्रोक, जैसे कि हमने पढ़ा कि आपके पास एओर्टिक एन्यूरिज्म में, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में, सब में हाइपरटेंशन इज अ रिस्क फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक हाइपरटेंशन के पेशेंट की फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्ट्रोक के साथ हो सकती है। Examination of the optic reveals a gradation of changes linked in the severity of hypertension. Fundoscopy can provide an indication of the arteriolar damage occurring elsewhere. इसकी मैं डायग्राम आगे मैंने मेंशन की भी है, ये सारा फिर मैं इंशाल्लाह आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी। जो कॉटन वूल है और हार्ड एक्सुडेट्स एंड डॉट हेमरेजेस हैं, दे आर करेक्टरिस्टिक। ये तो वैसे करेक्टरिस्टिक ज्यादातर डायबिटिक रेटिनोपैथी के हैं, लेकिन आपकी जो हाइपरटेंशन है इसके अंदर भी कॉटन वूल अपीयरेंस और जो है हार्ड एक्सुडेट्स आ सकते हैं, पेपिलोडेमा आपको मिल सकता है। लेकिन हाइपरटेंशन के साथ जो है सेंट्रल वेन थ्रोम्बोसिस, जो है सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस, इसका फंडोस्कोपी पे एक फीचर है। What are the investigations that important? Investigation सारा बेसलाइन आप कराएंगे पेशेंट का। सीबीसी इंपॉर्टेंट है, सीबीसी के अंदर एच बी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है वो दे कैन प्रेजेंट विद दे कैन प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन टू यू। हेडेक की कंप्लेन के साथ आते हैं पॉलीसाइथीमिया के पेशेंट्स अक्सर। और इसके अलावा यूरिया क्रेटिनिन इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज देखने के लिए। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने पोटेशियम सोडियम देखना होता है। जो कोन्स कुशिंग है उनमें स्पेसिफिक आपकी जो है बायोकेमिस्ट्री होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो बेसिकली हम जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं उसमें भी कंफर्म द डायग्नोसिस बाय ऑब्टेनिंग accurate representative blood pressure measurements. We identify the contributory factors and any underlying causes. हमने सारी हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैमिली, और उस पेशेंट का बीएमआई मेजर करना है। वी हैव टू असेस द अदर रिस्क फैक्टर्स एंड क्वांटिटी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर रिस्क। जो कार्डियोवास्कुलर का जो ग्रेस स्कोर था, कार्डियोवास्कुलर रिस्क उसके थ्रू निकालते हैं। उस ग्रेस स्कोर को लर्न करना थोड़ा टफ है, उसके अंदर क्लिप क्लासिफिकेशन भी आती है, तो वो आपका डेविडसन का के चैप्टर में है। वो आप सिर्फ एक दफा देख लें कि मतलब ये एक स्कोर सिस्टम है हमारे पास जिसके जरिए से हम कार्डियोवास्कुलर रिस्क जो है आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट का। डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन दैट आर ऑलरेडी प्रेजेंट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कोमॉर्बिडिटीज दैट मे इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। कोमॉर्बिडिटीज देखते हैं ना, क्योंकि डायबिटीज में फिर आपके पास चॉइस एस इनहिबिटर्स फर्स्ट आ जाते हैं, पैल्पिटेशंस के साथ है पेशेंट तो यू चूज फॉर बीटा ब्लॉकर्स, एंड सिमिलरली स्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ है तो एस इनहिबिटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। तो इसी वजह से आपको कोमॉर्बिडिटीज को भी साथ में देखना पड़ता है। अच्छा जी, हाउ डू यू मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज इम्पोर्टेंट। ब्लड प्रेशर जब भी हम मेजर करते हैं तो इसके अंदर ये मैं जनरली आपको बताया है मैंने आपको कि इसको जो है आपका 70% ऑफ द सर्कमफेरेंस जो है पेशेंट का आर्म का कवर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर उसको जो है अबव होना चाहिए फ्रॉम द क्यूबाइटल फोसा। एंड देन जो है आपने पहले जो पेल्पेटरी मेथड करते हैं उसमें आपने पल्स के ऊपर जो है पल्स फील की पेशेंट की, और आप जो है इन्फ्लेट करते हैं, वहां तक इन्फ्लेट करना है जहां पर पल्स आपको फील होना बंद हो गई, आपने उससे तकरीबन 5 to 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी अबव उसको इन्फ्लेट किया। ऐसे नहीं है कि पेशेंट का आप इन्फ्लेट करते जा रहे हैं 200 से ऊपर आपने इन्फ्लेट कर दिया है, तो इसका कोई जरूरत नहीं होती। आप जो इन्फ्लेट करते हैं वो आप डिसाइड करते हैं जब आपने पल्स के ऊपर अपना एक हैंड रखा हुआ है, दूसरे से आप इन्फ्लेट कर रहे हैं, जहां पर पल्स गायब हुई उससे 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपने ज्यादा इन्फ्लेट किया, और उसके बाद जो है आप जो है उसको डिफ्लेट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा है कि टू अवॉइड स्पूरियसली हाई रीडिंग्स इन obese subjects, a cuff should contain a bladder that encompasses at least 2/3 of the arm circumference. That is important. आप कोई पीडियाट्रिक उससे एडल्ट ब्लड प्रेशर नहीं नोट कर सकते, और एडल्ट जो स्पेग्मोमोनोमीटर होता है उसके अंदर भी अगर बहुत ओबीस पेशेंट है तो, और इट इज नॉट कवरिंग द 2/3 सर्कमफेरेंस ऑफ द आर्म, इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर रीडिंग एट दैट टाइम। एंड देयर इज अ टर्म दैट इज नोन एज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है कि वही डॉक्टर को
देखकर पेशेंट का ब्लड प्रेशर, देयर इज ट्रांजिएंट elevation of the blood pressure, that is known as white coat hypertension. And it has been estimated that up to 20% of the patient with raised BP at outpatient clinics have a normal BP when it is recorded by automated devices used at home. The risk of cardiovascular disease in these patients is less than that in patients with sustained hypertension, but greater than that in normotensive subjects. मतलब ये है कि जो white coat hypertension है, अगर नॉर्मल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तब उनका जो है रिस्क फैक्टर्स नॉर्मल पॉपुलेशन से उनके ज्यादा हैं, लेकिन रिलेटिवली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो रिलेटिवली इन पेशेंट्स में कम होती हैं। अगर आपको क्लिनिक में वाइट कोट हाइपरटेंशन के जो है सस्पिशन ज्यादा हो रही है तो यू हैव टू चॉइसेस। एक तो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट और दूसरा है होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में क्या करते हैं, उसमें एक ऑटोमेटेड एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर डिवाइस होता है। वो जो है आप पेशेंट को जो उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे सुबह 8 बजे से लेके 22 आवर्स, उसके हर घंटे में वो ऑटोमेटेड डिवाइस जो है हर घंटे में पेशेंट की दो दो रीडिंग्स लेता है और उसमें से तकरीबन 14 रीडिंग्स का हम एक एवरेज ले लेते हैं और उसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं और उस पर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है कि नहीं है। और उसके अलावा इट इज अ टफ प्रोसेस। जो पेशेंट्स इसको एडमिट नहीं करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वी हैव अनदर ऑप्शन विच इज नोन एज होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स। होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स में आपके पास सेमी ऑटोमेटेड डिवाइसेस होते हैं। दैट्स व्हाट आई डू विद माय पेशेंट्स एज वेल। इसमें क्या करते हैं, आपके अगर एक पेशेंट है आपके पास एंड यू आर सस्पेक्टिंग दैट दिस इज अ वाइट कोट हाइपरटेंशन एंड यू डोंट वांट टू लेबल द पेशेंट एज हाइपरटेंशन, व्हाट यू डू, यू आस्क द पेशेंट कि आपने अपने घर में अपना ब्लड प्रेशर मॉर्निंग और इवनिंग नोट करना है फॉर अबाउट 7 days, और उसके बाद जो है आप उसका एक एवरेज ले लेते हैं एंड देन यू डिसाइड दैट वेदर द पेशेंट इज हैविंग हाइपरटेंशन और नॉट। नाउ ये जो है हमारी इन्वेस्टिगेशंस को इन्होंने अच्छे से कंपाइल किया हुआ है कि किन किन इन्वेस्टिगेशंस की जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इलेक्ट्रोलाइट्स ये चीजें तो बताई थी, लेकिन यूरिन एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन यूरिया, और इसके अलावा एंड ऑर्गन डैमेज देखने के लिए भी ग्लूकोज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने साथ की कोमॉर्बिडिटीज को भी एड्रेस करना है। लिपिड प्रोफाइल पेशेंट की इंपॉर्टेंट है। थायराइड फंक्शन टेस्ट एज बिकॉज हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म both are associated with hypertension, and 12-lead ECG. ECG will show the left ventricular hypertrophy, and you may see some occult coronary artery disease signs as well. There are some specialized investigation. You don't do it in every patient, but chest X-ray उसमें आपको एक तो कार्डियोमेगाली भी मिलेगी, आपको हार्ट फेलियर के साइंस भी मिल सकते हैं, इसके अलावा कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा है। हार्ट फेलियर में क्या मिलता है चेस्ट एक्सरे पे? एनीवन? हार्ट फेलियर में आपको एक तो वाइडेंड मीडिया स्टैनम मिलेगा, कर्ली बीज लाइन मिलेंगी, और आपको अपवर्ड डाइवर्जेंस ऑफ द जो है पल्मोनरी वस्कुलेचर भी मिलती है उसके अंदर, जो बटरफ्लाई अपीयरेंस है, और इसके अलावा पल्मोनरी एडिमा के अंदर पूरा जो है आपको ओपेसिटी मिल सकती है, आपको प्लूरल डिफ्यूजन मिल सकता है हार्ट फेलियर के अंदर। ठीक है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा में एक तो एओर्टा का अपना तो जो एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन है वो तो है ही है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट फीचर भी है कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा का एक्सरे पर। एनीवन? मैम 3 साइन पॉजिटिव होगा। एक्सीलेंट। और आपको रिब नॉचिंग भी मिलती है उसके अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा के आप लोगों के जो फाइनल ईयर वाइवाज हैं उसमें ये जो है चेस्ट एक्सरे के अंदर फाइंडिंग्स पूछते हैं कि कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा की क्या फाइंडिंग्स होती हैं, तो उसमें रिब नॉचिंग भी है, क्योंकि कोलेटरल्स उसमें बन जाते हैं, उस वजह से जो है नॉचिंग ऑफ द रिब मिलती है। ओके। एम्बुलेटरी बीपी रिकॉर्डिंग प्लस माइनस है। अगर आपको कोई सस्पिशन है कि दैट इज अ वाइट कोट हाइपरटेंशन, यू डू अ इकोकार्डियोग्राम, रीनल अल्ट्रासाउंड और रीनल एंजियोग्राफी। प्लस माइनस है टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, अगर आपको कोई ब्रूई वगैरह मिल रही एग्जामिनेशन पे। ठीक है। यूरिनरी कैटेकोलमीन्स, अगर सस्पिशन है फियोक्रोमोसाइटोमा की कि paroxysmal है, इंटरमिटेंट पेशेंट को कभी हाइपरटेंशन है कभी नहीं है, तो इस तरह के पेशेंट अक्सर जो है एंजाइटी या पैनिक अटैक लेवल हो जाते हैं। तो इन जो paroxysms ऑफ हाइपरटेंशन है उसके अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा स्पेशली इन अ यंग पेशेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। यूरिनरी cortisol and dexamethasone suppression test to detect possible Cushing syndrome.
देखिए जहां पर भी कुशिंग सिंड्रोम क्या है, उसमें कॉर्टिसोल लेवल आपका ज्यादा है, ठीक है। जहां पर भी एंडोक्राइनोलॉजी में जहां पर भी आप ने किसी भी चीज की हाइपर सिक्रीशन को चेक करना है, जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, तो उसके अंदर यू डू अ सप्रेशन टेस्ट, आप उसको सप्रेस करके जो है डायग्नोस करते हैं। लेकिन जहां पर आपको किसी भी चीज के कम होने की डायग्नोसिस बनानी है, जैसे कि कुशिंग का ऑपोजिट क्या है, एडिसन्स डिजीज है, तो अगर एडिसन्स डिजीज देखेंगे आप, तो उसमें आप स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी में ये चीज याद रखें, जहां पर हाइपर सिक्रीशन आप देख रहे हैं वहां आप सप्रेशन टेस्ट करेंगे, जहां अंडर सिक्रीशन देख चेक कर रहे हैं तो वहां पर आप स्टिमुलेशन टेस्ट करेंगे। इसके अलावा प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी है, एंडोस्टेरोन है टू डिटेक्ट पॉसिबल प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। अच्छा जी, उसके अलावा आपने रेजिस्टेंट यंगर पेशेंट 40 इयर्स ऑफ एज हैं, दोज विद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, उनमें आपको जो है सेकेंडरी कॉजेस को लाजमी देखना चाहिए। और ये इन्होंने यही पैरोक्सिस्मल हेडेक के साथ, पेल्पिटेशंस के साथ, स्वेटिंग के साथ है, तो पेशेंट के अंदर फियोक्रोमोसाइटोमा की आपको एक सस्पिशन होनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन? हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल हिस्ट्री जो आप लेते हैं स्मोकिंग की, अल्कोहलिज्म की, एडिक्शन की, ड्रग अब्यूज की, तो वो सब जो है आपको पर्सनल हिस्ट्री में आपको पेशेंट से पूछना होता है। ओबेसिटी तो आप बीएमआई मेजर करेंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी एक होता है, तो प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है। और इसके अलावा मतलब इट इज अ सेकेंडरी कॉज ऑफ हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। इट मे कन्वर्ट इनटू एसेंशियल हाइपरटेंशन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पोस्टपार्टली नॉर्मल हो जाता है। रीनल डिजीज में टाइप जितनी भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उनकी जो है नेफ्राइटिक सिंड्रोम्स जो हैं, दे प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन। एंडोक्राइन डिजीज में फियोक्रोमासाइटोमा, कुशिंग, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जिसको कोन सिंड्रोम बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सप्रेसिबल हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर पैराथायराइडिज्म, एक्रोमेगैली, ये एंडोक्राइन की कॉजेज हैं। देन यू हैव ड्रग्स में एस्ट्रोजन पिल्स हैं, एनसेड्स हैं, एम्फेटामीन्स हैं। अच्छा जी, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा है। और इसके अलावा ये रीनल डिजीजेस के अंदर ही रीनल वस्कुलर डिजीज एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, और एंडोक्राइन की ही ये बाकी कॉजेज हैं। इसमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, लिडल सिंड्रोम, और ये 11 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी। सारी याद करने की जरूरत नहीं है, मोटे मोटे ये भी बता दें कि अल्कोहल, ओबेसिटी, एंडोक्राइन डिजीज, ड्रग्स एंड कोऑक्टेशन ऑफ इट, इसका एक मैंने मेमोनिक बनाया है, PRCOD, तो इसे जो है आप याद रख सकते हैं इसको। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपके ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अच्छा, ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी वाइवर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है पूछते हैं वाइवर्स में, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये डायग्राम फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो ग्रेड्स है ना, सबसे ग्रेड 1, ये सारी डिटेल्स अगर आपको याद नहीं भी होती तो आप जो है इसमें ये याद रखें, सबसे पहले सिल्वर वायरिंग होती है। सिल्वर वायरिंग में क्या होती है कि वैसे तो एक वेसल की रेड अपीयरेंस होती है, इसमें क्या होता है ऑरेंज या सिल्वर कलर की अपीयरेंस होनी शुरू हो जाती है वेसल्स की, उसको हम कहते हैं सिल्वर वायरिंग। देन यू हैव ग्रेड 2। ग्रेड 2 में जो है ये जो ग्रेड 1 चेंजेस है ये तो मिलेंगी, साथ में आपको एट्रियोवेनस निपिंग मिलेगी। व्हाट इज एट्रियोवेनस निपिंग? कि जहां पर आर्टरी वेन को क्रॉस कर रही होती है ना, वो थोड़ी सी वेन की कंप्रेशन कर देती है, क्योंकि उसका प्रेशर उसके अंदर ज्यादा है ना, तो वो वेन को कंप्रेस करती है, उसकी वजह से साइड साइड से वेन की डायलिटेशन हो जाती है, तो दिस इज नोन एज आर्टीरियोवेनस निपिंग। ग्रेड 3 में ग्रेड 2 चेंजेस के साथ आपको फ्लेम शेप्ड और ब्लॉट हेमरेजेस मिलेंगे, और कॉटन वूल एक्सुडेट्स मिलेंगे। कॉटन वूल एक्सुडेट्स को हम सॉफ्ट एक्सुडेट्स भी बोलते हैं। ग्रेड 3 में पेपिलेडिमा मिलेगा, यानी कि ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क। ये हाउ टू मेजर द ब्लड प्रेशर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू। कुछ जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर कि आपने जो है सिटिंग बीपी नोट करना है, पेशेंट का हैंड जो है रेस्ट करना है, और रेस्ट द पेशेंट फॉर 2 मिनट्स। अगर आप पोस्चरल हाइपोटेंशन नोट कर रहे हैं तो कैन एनीवन टेल मी व्हाई वुड सम चेक पोस्चरल हाइपोटेंशन इन अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन? वैसे तो पोस्चरल हाइपोटेंशन आप हाइपोटेंशन के साथ पोस्चरल हाइपोटेंशन देखते हैं ना, हाइपरटेंशन में पोस्चरल हाइपोटेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एनीवन? या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ, ये आपका मतलब MCQ पॉइंट भी है, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइपरटेंशन दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद पोस्टरल हाइपोटेंशन? एनीवन?
दैट इज फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा में क्योंकि ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है ना, तो जब आपके पास ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन जहां पर भी आते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, इसलिए उनमें भी पोस्टरल हाइपोटेंशन होता है। सिमिलरली फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर भी होता है। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट भी है आपका। अच्छा जी, आपने रिमूव करनी है टाइट क्लोथिंग फ्रॉम द आर्म। यू हैव टू सपोर्ट द आर्म एट द लेवल ऑफ द हार्ट। आपने रखना है पेशेंट को, ठीक है ना, जैसे पेशेंट बैठा हुआ है आपने टेबल पे ही उसका हाथ रखना है, ऐसे नीचे लटकाना नहीं है। अप्रोप्रिएट साइज का कफ यूज किया। और जब आप प्रेशर को जो है स्लोली, ये नहीं कि आप उसको जो डिफ्लेट करते हैं एकदम से उसको ओपन कर दिया, नहीं, आपने उसको स्लोली डिफ्लेट करना है, यानी कि 2 mm of Hg पर सेकेंड जो है वो लोअर होगा। एंड रीड द बेबी टू द नियरेस्ट 2 millimeter ऑफ मर्करी। जब आपकी कैराटोकोफ साउंड स्टार्ट होती है ना, कैराटोकोफ साउंड्स के बिल्कुल नियरेस्ट 2 millimeter मर्करी प्लस माइनस करके आपने वहीं से ही नोट करना, उसको स्टार्ट करना है। एंड यूज द फेज 5 disappearance of sounds to measure the diastolic BP। ये जो फेजेस है ना, ये जो आपकी कैराटोकोफ साउंड्स होती है, इसकी फेजेस होती हैं, 5 फेजेस होती हैं। कि सबसे पहले एक शॉर्ट साउंड आपको सुनाई देती है, वो उसकी फेज 1 होती है। उसके बाद एक ब्लोइंग साउंड सुनाई देती है, वो फेज 2 होती है। फिर जो है वो ब्लोइंग साउंड थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, वो अब फेज 3 होती है। फिर वो साउंड बिल्कुल मफल्ड सी हो जाती है, वो फेज 4 होती है। 5 में बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। तो ये जहां पर डिसअपेयर होती है वो आपका डायस्टोलिक बीपी है। ठीक है, एंड टेक 2 मेजरमेंट्स एट ईच विजिट। हर विजिट में आपने 2 मेजरमेंट्स लेके उसका एक एवरेज निकालना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें, ये देख रहे हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं कॉटन वूल अपीयरेंस। यहाँ पर ये जो ये आपको नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये सारी रेड धारा आपको कितना, कोई ऑप्टिक डिस्क की कोई जो है मार्जिन भी नहीं पता चल रहा। और इसके अलावा सारा रेटिना इज जस्ट फुल ऑफ ब्लड। तो इस तरह की जब भी नजर आए आपको फंडोस्कोपिक पिक्चर, ये फंडोस्कोपी की पिक्चर है, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो ये भी मतलब है आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप अगर पढ़े ना, सेंट्रल रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस की ये जो है मेनली आपकी हाइपरटेंशन जो है रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस के साथ एसोसिएटेड है या फिर आर्टीरियल, तो रेटिनल वेन थ्रोम्बोसिस के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, now we come towards the management of the hypertension. Management of the hypertension starts from the ये एक जनरल सा जो डेविडसन में मैनेजमेंट का है ना, इसको हम पढ़ लेते हैं फिर प्रॉपर, क्योंकि इसमें मेडिसिन अलग अलग डिस्कस हुई हुई है। उसके बाद प्रॉपर एक मैनेजमेंट का जो है मैंने लास्ट में हम इसको एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि हमें उसका प्रॉपर जो है आइडिया हो। इन्होंने जो है जो डेविडसन है इसमें इन्होंने लिखा है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी है, इट कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक एंड टू अ लेसर एक्सटेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब आप जब हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं तो स्ट्रोक का इंसिडेंस ज्यादा डिक्रीज होता है बनस्बत कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। और जो रिलेटिव बेनिफिट्स हैं, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 30% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड 20% रिडक्शन इन रिस्क ऑफ सीएडी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, and similar in all patient groups. So the absolute benefit of treatment, total number of events prevented, is greatest in those at highest risk. Treatment guidelines are based on estimates of the 10-year coronary artery disease risk. आपकी जितनी भी treatment guidelines हैं वो depend करती हैं जो हम 10-year coronary artery disease risk निकालते हैं. Total cardiovascular risk can be estimated by multiplying coronary artery disease risk by 4 by third. That is, if coronary artery disease risk is 30%, cardiovascular risk is 40%. ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। What are the intervention thresholds? अगर सर्टेन है कि आपने कहाँ पर किस लेवल पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा और डायस्टोलिक प्रेशर होगा, जहां पर यू डू इंटरवेंशंस एंड यू डू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या यू इंट्रोड्यूस पेशेंट विद फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। ये चीज जो है हम अभी डिस्कस करेंगे। आपके जो है ट्रीटमेंट टारगेट्स क्या हैं? ट्रीटमेंट टारगेट्स जो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो ऑप्टिमल बीपी है फॉर रिडक्शन ऑफ मेजर कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स हैज बीन फाउंड टू बी 139 by 83 मिलीमीटर मर्करी एंड इवन लोअर इन पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटिस। लेकिन इस वैल्यू को इस तरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये हम आगे जो जीएनसी गाइडलाइंस और जो प्रॉपर ब्रिटिश हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस है वहां पर जो ट्रीटमेंट टारगेट्स दिए हुए हैं ना, टेबुलेटेड फॉर्म में भी है, बस वो आप याद कर लें, वही बहुत है।
जी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई हुई है कि पेशेंट जिनको डायबिटीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज होता है, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएटिंग एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी एंड मतलब कोई भी पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज का है या डायबिटीज का है, साथ में कोमॉर्बिड्स अगर आ जाती है तो उसके अंदर जो है आपका जल्दी आप हाइपरटेंशन को रिलेटिवली लोअर लेवल पे भी ट्रीट करते हैं। लेकिन खैर ये मतलब जितनी भी बातें डेविड्सन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके इनको बताया हुआ है, जस्ट मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर रही हूँ ताकि आपको ये पता हो कि डेविडसन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अदरवाइज एट द एंड जो आपको याद रखने की चीजें हैं हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में, वो लास्ट में मैंने दी हैं, वो हम इंशाल्लाह उसको अच्छे से देखेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके अंदर वेट कंट्रोल है, रिड्यूसिंग अल्कोहल इनटेक, रिस्ट्रिक्टिंग द सॉल्ट इनटेक, टेकिंग रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ द वेजिटेबल्स एंड इट कैन लोअर द ब्लड प्रेशर। अच्छा, आपको एक चीज मैं बताऊं कि जो पेशेंट रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका जो है इट कैन लीड टू अबाउट 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर। मतलब अगर एक पेशेंट आपके पास 160 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के साथ है और वो डेली जो है 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करता है, तो आप विदाउट मेडिसिन ही उसका ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक तक पहुंचा सकते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। ये खुद बजाते खुद फिजिकल एक्सरसाइज 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर को लोअर कर सकती है। स्मोकिंग के बारे में आप पेशेंट को काउंसिल करेंगे एंड ये आपने फिश ऑयल कैप्सूल्स जो मिलते हैं ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। अडॉप्टिंग अ डाइट दैट इज लो इन सैचुरेटेड फैट एंड जो है मे प्रोड्यूस फॉर द रिडक्शन इन द कार्डियोवास्कुलर रिस्क। अच्छा, ड्रग्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लें। थायाजाइड्स हैं, एस इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कंबाइंड बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर्स हैं और कुछ वेजोडाइलेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं। सिर्फ इन चीजों को देख लें कि किस ड्रग की क्या साइड इफेक्ट्स होती हैं। आपको डोजेजेस याद करने की जरूरत नहीं है इस लेवल पे, लेकिन आपको ये कुछ नेम्स पता होने चाहिए। जैसे अगर कोई बोले कि थायाजाइड डायूरेटिक्स के नाम बताएं, तो आपको जो है बेंड्रोफ्लूमिथायाजाइड और इसके अलावा जो है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड याद होना चाहिए। ज्यादातर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड हमारी प्रिपरेशंस में यूज होता है। एस इनहिबिटर्स, अच्छा जो है थायाजाइड डायूरेटिक्स जो है इनका एक साइड इफेक्ट होता है कि ये जो है दे कीप द कैल्शियम इन द बॉडी, ठीक है। और जो आपके लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे एक्सक्रीट द कैल्शियम इन द यूरिन, ठीक है। इनका ये एमसीक्यू पॉइंट है। थायाजाइड जो है यूरिनरी कैल्शियम डिक्रीज करते हैं, दे कीप द कैल्शियम इन द बॉडी। और इसके अलावा जो लूप डायूरेटिक्स हैं, दे डिक्रीज द कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी, सो दे इंक्रीज द यूरिनरी कैल्शियम, ठीक है। ये इनका एक एमसीक्यू पॉइंट है। थाया से इसको इस तरह से याद रख लें कि जो ताया है इज द बॉस ऑफ द होम और ताया कीप्स एवरीथिंग, तो उसके लिए इट कीप्स द कैल्शियम विद इट। अच्छा, एस इनहिबिटर्स के अंदर हम देखें तो इन्होंने खैर एनालैप्रिल, रामिप्रिल, जितने भी प्रिल्स हैं ना आपके पास, लिजिनोप्रिल, एनाप्रिल, ये जो रिल जितने होते हैं, दीज आर एस इनहिबिटर्स। और जो आर्टान्स, जितने सार्टान्स हैं, इसमें इन्होंने इर्बी सार्टान बताया हुआ है, लो सार्टान है, बेल सार्टान है, ठीक है। ये सारे आपके पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। एस इनहिबिटर्स की कॉम्प्लिकेशंस वाइवा में अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये जो है और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी अक्सर पूछी जाती हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले इसका साइड इफेक्ट क्या है, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। इसीलिए आप जब भी किसी पेशेंट को एस इनहिबिटर एडवाइस करते हैं, आप उसको बेड टाइम पे एडवाइस करेंगे, क्योंकि ये जो है डिजीनेस और जो है पोस्टरल हाइपोटेंशन कर सकता है, फॉल के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा दिस इज फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, उसके बाद पेशेंट टॉलरेट कर जाता है। कफ, क्योंकि ब्रेडिकानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, तो अगर किसी पेशेंट को कफ है एंड यू रिप्लेस इट विद ARB, ठीक है, तो दे डू नॉट कॉज कफ एंड आर बेटर टॉलरेटेड। इसके अलावा रैश, एस इनहिबिटर्स के साथ रैश कभी भी ना भूलें, एंजियोएडिमा कभी भी ना भूलें, हाइपरकेलेमिया करता है, ये रीनल डिस्फंक्शन करता है। इसी वजह से अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप देखें तो पेशेंट को अगर कंजेनाइटल या एंजियोएडिमा की उसकी हिस्ट्री है या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का पेशेंट है, तो एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दैट पेशेंट। उसके अलावा
इनिशियली जब आप एस इनहिबिटर स्टार्ट कराते हैं 2 वीक्स के बाद आप यूरिया क्रेट रिपीट कराते हैं, उसमें थोड़ा सा बेस लाइन इंक्रीज होता है। तो उनके अपने थ्रेश होल्ड हैं कि किस लेवल पे आपने एस इनहिबिटर को स्टॉप करना है। माइल्ड रेज इन यूरिया क्रेटिनिन इज प्रेजेंट, उस पर आप स्टॉप नहीं करते हैं एस इनहिबिटर्स को। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, उसमें एम्लोडिपिन 5 to 10 मिलीग्राम, कॉमनली आप लोगों ने देखा होगा, आपकी फैमिली में भी यूज करते हैं पेशेंट, लोडोपिन के नाम से, नॉर्वास के नाम से, ठीक है ना। तो एम्लोडिपिन कॉमनली यूज मेडिकेशन है। निफिडिन 30 to 90 मिलीग्राम डेली। निफिडिपिन जो है ज्यादातर आपने अगर देखा हो वार्ड में जो सीओपीडी के पेशेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ होते हैं उनमें निफिडिल के नाम से मेनली ये यूज हो रही होती है, ठीक है। लेकिन ये जो डिपीन्स हैं दीज आर कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट, तो एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निमोडिपिन, ये जो है आपके पास एज एन एंटी हाइपरटेंसिव यूज होते हैं। और they are well tolerated antihypertensive drugs and they are particularly useful in older people. इसका साइड इफेक्ट अक्सर हम इग्नोर करते हैं, ये जो है चूंकि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराता है तो पेशेंट पैल्पिटेशंस के साथ आ सकता है, ठीक है ना। वेजोडाइलेटर है, वेजोडाइलेटर जितने भी होंगे वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराएंगे। इसके अलावा वेजोडाइलेटर जितने होंगे वो फ्लशिंग कराएंगे, और ये जो है फ्लूइड रिटेंशन भी कराता है। आपके जो रेट लिमिटिंग कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट हैं जैसे कि डिल्टाज़ैम है और वेरापैमिल है, दे कैन बी यूजफुल व्हेन हाइपरटेंशन को एग्जिस्ट विद एंजाइना। लेकिन अगर जो है सिंपल हाइपरटेंशन है, एंजाइना नहीं है, तो आप जो है ये वाले एम्लोडिपिन वाली जो रेंज है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की उसको प्रेफर करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक साइड इफेक्ट बड़ा ही जो है लोग इग्नोर करते हैं, अक्सर इवन डॉक्टर से भी मिस हो जाता है। जिस पेशेंट को आप ये स्टार्ट कराते हैं ना, पेशेंट पीरियल एडिमा के साथ प्रेजेंट करता है और बहुत इसकी ये जो है हालांकि रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हमने खुद बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं एंड आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद द पीरियल एडिमा, और उनका एकोकार्डियोग्राफी, उनका एल्ब्यूमिन लेवल और उनके जो है ट्रोपाइज गए हैं, ईसीजी, एवरीथिंग वाज डन, एंड द पेशेंट वाज डिस्चार्ज ऑन द सेम ड्रग ऑफ एम्लोडिपिन, क्योंकि आपकी जो ये बड़ी कॉमनली यूज ड्रग है एक्सटोर, उसके अंदर जो है एम्लोडिपिन एक प्रिपरेशन है वेलसाटान के साथ ही नॉर्वास पेशेंट ले रहे होते हैं, और सेम ड्रग पे उसको जो है पेशेंट को एक मतलब कहीं आपको कॉज भी नहीं मिलती पीडल एडिमा की, एंड पेशेंट जो है किसी डायूरेटिक के साथ के डायूरेटिक की जो फ्लूइड रिटेंशन हुई भी है ना, उसके ज़ाहिर बात है वो डायूरेसिस करा देगा, और पेशेंट को दे कंटिन्यू ऑन एम्लोडिपिन, तो वो फिर वो दोबारा जैसी डायूरेटिक को स्टॉप करेगा, एक तो वो डिहाइड्रेशन कराएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कराएगा, और पेशेंट दोबारा जो है पीडल एडिमा के साथ प्रेजेंट करेगा। तो इसी वजह से अगर कोई पेशेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर हो तो नेवर एवर फॉरगेट, अगर द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग टू यू विद द पीडल एडिमा, तो दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और ये भी आपका एक एमसीक्यू पॉइंट है। बीटा ब्लॉकर्स यूजुअली फर्स्ट चॉइस नहीं होते, स्पेशल सिचुएशंस हैं जहां पर आप बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं, स्पेशली अगर कार्डिक डिजीजेस के साथ जो है पेशेंट हो। ऑल राइट, उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है कि ये जो ऊपर टेबल है तो हाइपरटेंशन एंड ओल्ड एज है, इसको खुद ही से एक रीडिंग दे दीजिएगा, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिखा हुआ। जो आपके बीटा ब्लॉकर्स में जो बीटा वन एड्रेनोसेप्टर्स हैं, दे शुड बी यूज्ड रादर देन नॉन सिलेक्टिव एजेंट्स, क्योंकि दैट आल्सो ब्लॉक बीटा टू एड्रेनोसेप्टर व्हिच मेडिएट वेसोडाइलेशन एंड ब्रोंकोडाइलेशन। आप जो है प्रेफरेंशियली जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो यूज करते हैं। जो आपके पास कार्डियो सिलेक्टिव है ना, उसके अंदर ये मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल और बिसोप्रोलोल है। बाकी नॉन, हालांकि ये जो कार्बिडोलोल है जो है ये कंबाइंड बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर है। अ, अ, ये वाला लेबिटोलोल and carvedilol, they are combined beta and अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। हालांकि कार्बिडोलोल अक्सर लोग इसमें वो कहते हैं कि कार्बिडो इज मोर रिलेटेड टू द कार्डियक, सो इट माइट बी मोर स्पेसिफिक टू द हार्ट, लेकिन ये जो है इट इज ये जो है मेयरली बीटा ब्लॉकर नहीं है, इट इज कंबाइंड बीटा एंड अल्फा ब्लॉकर। तो लेबिटोलोल और कार्बिडोलोल इसकी एक एग्जांपल है। लेबिटोलोल का जो है इन्फ्यूजन मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है ना यूज होता है, आपकी फर्स्ट चॉइस है मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर लेबिटोलोल जो है। दूसरे वेसोडाइलेटर्स इसमें अल्फा वन एड्रेनोसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे कि प्राजोसिन, ये इतना कॉमनली यूज नहीं होते, एंडोरामिन, एंडोक्साजोसिन है, ड्रग्स दैट एक्ट डायरेक्टली ऑन मस्कुलर स्मूथ मसल्स सच एज हाइड्रोलाजीन एंड मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट क्या है, एनीवन?
मिनॉक्सिडिल का वैसे ही आप लोगों ने नाम सुना है अपार्ट फ्रॉम एज एन एंटी हाइपरटेंसिव? मोनोक्सिडिल स्प्रे कभी यूज किया है? हेयर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं ना, ये हाइपरट्राइकोसिस कराता है, ये जो है हेयर ग्रोथ कराता है, और ये बेसिकली पेशेंट्स की स्टडी मतलब एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ये पेशेंट को दिया गया था, और उस स्टडी में उन्होंने देखा कि पेशेंट को जो है दे स्टार्ट डेवलपिंग हाइपरट्राइकोसिस, और उसके बाद जो है मिनॉक्सिडिल वाज डायग्नोज्ड, और इट वाज जो है मतलब पता चला था फर्स्ट टाइम कि जो है इट कैन बी यूज फॉर हेयर ग्रोथ पर्पस, और फिर उसके बाद जो है ये फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस जो है यूज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो है ना ये चीज याद रखें, जितने भी आपके वेजोडाइलेटर्स होते हैं इनका फर्स्ट डोज पोस्टरल हाइपोटेंशन उनके साथ होता है, और वो सब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी कराते हैं। ये तो आपके हो गए एंटी हाइपरटेंसिव्स जो कि आप यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरिन आप अक्सर देखते होंगे कि हाइपरटेंसिव जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आप जो है अक्सर पेशेंट एस्पिरिन भी ले रहे होते हैं। तो एस्पिरिन जो है इट इज एंटीप्लेटलेट थेरेपी एंड इज पावरफुल मींस ऑफ रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क बट मे कॉज ब्लीडिंग particularly intracerebral hemorrhage in a small number of patients. So when do you start the patient? When a patient is greater than 50 years of age and the patient is having hypertension, so there is an indication of starting aspirin to the patient 75 milligram daily जो है आप पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसका 10 ईयर कार्डियो कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क जो है वो एटलीस्ट 15% है, यानी डायबिटिक पेशेंट में या ऐसा पेशेंट जो जिसकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा है उनके अंदर यू एड एस्पिरिन विद एंटी हाइपरटेंसिव। स्टेटिन जाहिर बात है आप जब इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट का आ रहा है तो यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विद स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का साइड इफेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ। स्टैटिन्स अक्सर आप पेशेंट्स को स्टार्ट कराते हैं ना, पेशेंट मायोपैथी मसल पेन के साथ बड़ा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये रेब्डोमाइलिसिस भी कराता है। व्हाट शुड बी योर चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स? ये जो है हम टेबुलेटेड फॉर्म में अभी पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन थेरेपीज है। इसमें जो है पहले हम ये मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ आपको रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन क्या होता है? रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट्स डू नॉट गिव एडवोकेट कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर, ऑल्दो दिस मे बी ड्यू टू जेन्युइन रेजिस्टेंस टू थेरेपी इन सम केसेस। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन कॉज नॉन कॉम्प्लायंस है, पेशेंट इज नॉन एडहेरेंट टू द ड्रग थेरेपी, और इसी वजह से जो है पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। इसीलिए ये भी हिस्ट्री में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रग एडहेरेंस कैसी है पेशेंट की। एंड रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय फेलियर टू रिकॉग्नाइज एन अंडरलाइंग कॉज, मतलब कोई सेकेंडरी कॉज थी हाइपरटेंशन की, आपने उसको डायग्नोज नहीं किया एंड यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एज एसेंशियल हाइपरटेंशन, तो ऑब्वियसली पेशेंट का हाइपरटेंशन विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, ठीक है। और वैसे जो है आप रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन एक रिफ्रैक्टरी हाइपरटेंशन है और एक है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, ठीक है। यहाँ पर जो है इन्होंने रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का वर्ड भी यूज किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन आप उस वक्त पेशेंट को लेबल करते हैं जब एक तो सेकेंडरी कॉज नहीं है, मतलब पेशेंट इज हैविंग एसेंशियल हाइपरटेंशन, लेकिन आप उसको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन तब यूज करते हैं जब पेशेंट 3 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस पर होता है, ठीक है। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव की जो है एक रिजीम होती है कि बजाय कि आप कोई और ड्रग ऐड करने से पहले यू इंक्रीज द डोज ऑफ द इनिशियल ड्रग दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द पेशेंट। जब आप कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में बी डिजायरेबल फॉर अदर रीजंस, फॉर एग्जांपल लो डोज थेरेपी विद 2 ड्रग्स may produce fewer unwanted side effects than treatment with the maximum dose of the single drug। मतलब अगर आप सिंगल ड्रग को मैक्सिमम डोज पे ले जा रहे हैं तो उसमें जो है आप इसकी बजाय 2 कंबाइंड ड्रग यूज कर लें, दोनों को लो लो डोज में दे दें ताकि अनवांटेड साइड इफेक्ट्स डिलेड हो जाएं। एंड सम ड्रग कॉम्बिनेशंस हैव कॉम्प्लीमेंट्री और साइनर्जेस्टिक एक्शन, फॉर एग्जांपल थायराइड डायरेटिक्स जो है ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को जो है की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, जबकि एस इनहिबिटर इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं।
व्हाट इज एसेलरेटेड हाइपरटेंशन? इन्होंने डेविडसन में एसेलरेटेड हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को एक साथ यूज किया हुआ है। वैसे बेसिकली एसेलरेटेड हाइपरटेंशन इज व्हेन द पेशेंट कम्स विद द हाइपरटेंशन एंड वेरी हाई ब्लड प्रेशर एंड देयर इज सम एंड ऑर्गन डैमेज। और एंड ऑर्गन डैमेज के साथ मतलब पेशेंट या तो प्रोटीन्यूरिया के साथ है, स्ट्रोक के साथ है, कोई इस्केमिक हार्ट डिजीज आ रही है, यूरिया क्रेटिनिन डिरेंज आ रहा है, मतलब एंड ऑर्गन डैमेज है किसी भी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ। उसमें रीडिंग इतना वैल्यू नहीं करती जितना एंड ऑर्गन डैमेज वैल्यू करता है। और अगर जो है एग्जामिनेशन के ऊपर पेपिल एडिमा मिल गया तो दिस इज मेलिग्नेंट। फंडोस्कोपी पे पेपिल एडिमा मिल रहा है तो दिस इज टर्म्ड एज मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। All right. What is the management of accelerated hypertension? Basically, in accelerated phase hypertension, lowering blood pressure too quickly may compromise tissue perfusion due to altered autoregulation and can cause cerebral damage. तो आपको एकदम से ब्लड प्रेशर लोअर नहीं करना होता, आपको 24 to 48 आवर्स तक पेशेंट का ब्लड प्रेशर 150 to 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक लाना है। ज्यादातर पेशेंट्स में आप जो है जो इंजेक्टेबल फॉर्म्स हैं वो अवॉइड करते हैं एंड आप बीपी को कंट्रोल करते हैं विद बेड रेस्ट एंड ओरल ड्रग थेरेपी। इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर लेबिटोलोल, ये मैंने आपको बताया कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के ड्रग ऑफ चॉइस लेबिटोलोल है। लेबिटोलोल की डोज इज 2 मिलीग्राम पर मिनट टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 मिलीग्राम जो हम दे सकते हैं। कहीं ये डोज 260 मिलीग्राम भी मेंशन्ड है। डोज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेबिटोलोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। इसके अलावा आप हाइड्रोलिजीन भी दे सकते हैं फॉर मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इंट्रावेनस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी दे सकते हैं and all are effective but they require careful supervision, preferably in a high dependency unit. सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कोई मुझे साइड इफेक्ट बताएगा? आप लोगों ने कभी वैसे देखा है पेशेंट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला हो? मैंने वैसे यहाँ पर जो है हमने मेरी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है, मैंने इवन कार्डियोलॉजी में मे भी यूज होता हो, लेकिन जब मैंने रोटेशन की थी तो आई हैव नॉट सीन इट्स यूज। लेकिन जो है ये चीज आप याद रखें कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ना, ये आपका जो है बहुत सेंसिटिव होता है टू द लाइट। इसी वजह से ये जो है ना हमेशा बहुत इसको कवर्ड फॉर्म में जो है ना देते हैं पेशेंट को, क्योंकि जैसे ये लाइट को एक्सपोज होता है तो ये जो इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है साइनाइड में, और पेशेंट जो है में प्रेजेंट विद साइनाइड पॉइजनिंग। मतलब आपको कोई पेशेंट है जिसको आप बिल्कुल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने स्टार्ट कराया और उसके बाद यू सी दैट द पेशेंट की जो है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई और वो कंफ्यूज्ड है, उसको चेस्ट पेन स्टार्ट होगी, एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग के साथ है, और आप एबीजीज कराते हैं तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल रही है, तो दीज आर बेसिकली साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग का कोई मुझे एंटीडोट बता सकता है? असल में यहाँ पर यूज नहीं होते ना, इसी वजह से इनके नामों को याद करना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये एमसीक्यू पॉइंट है, इसी वजह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक तो लाइट सेंसिटिव है, साइनाइड पॉइजनिंग कराएगा अगर एक्सपोजर टू लाइट हो जाए, क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। और इसके अलावा जो है इसका एंटीडोट इज डाइकोबाल्ट एडिटेट, ठीक है। नाम भी सिर्फ डाइकोबाल्ट एडिटेट का याद रखें तो मोर देन इनफ है। अच्छा जी, अब हमने ड्रग्स पढ़ ली, हमने पढ़ लिया कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अब हम जो है आते हैं टारगेट्स के ऊपर कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, और इसके अलावा हम किस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं। ब्लड प्रेशर टारगेट, अगर एज, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, डेविडसन में भी यही दिया हुआ है। अगर पेशेंट इज लेस देन 80 इयर्स ऑफ एज, आपका टारगेट क्या होना चाहिए ब्लड प्रेशर का? 140/90 क्लिनिकल बीपी। और जो उसका एम्बुलेटरी जो है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है, और हाउस का जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट है वो 135/85 हो, ठीक है। अगर एज इज ग्रेटर देन 80 तो 150/90 भी ओके है, और क्लिनिकल जो है 145/85। मतलब आपका जो डायस्टोलिक है वो दोनों में सेम है, मतलब आपके जो ग्रेटर देन 80 इयर्स ऑफ एज है 140/90 150/90, चाहे एज ग्रेटर देन 80 है चाहे लेस देन 80 है, लेकिन सिस्टोलिक का फर्क है कि ये आप जब ग्रेटर देन 80 है तो 150 का टारगेट रखें, और जब मोर लेस देन 80 है तो 140 का टारगेट रखें। अच्छा जी,
हाउ डू यू मैनेज हाइपरटेंशन? आपने पेशेंट को सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की, भाई वेट रिड्यूस करना है आपने, और इसके अलावा ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि 10 kg वेट लॉस जो है 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर को कम करता है। ठीक है, सेम इज द केस विद द एक्सरसाइज। तो बेसिकली आपकी जो ब्रिस्क वॉक है, हेल्प्स यू इन कैलोरीज बर्निंग, एंड इनडायरेक्टली नहीं, ऑब्वियसली डायरेक्टली लीड्स टू द वेट रिडक्शन। तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वैसे ही विदाउट मेडिकेशन भी कवर हो जाएगा। लो सॉल्ट डाइट हम पेशेंट को कहते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम बोले तो हम ये बोल देते हैं पेशेंट को कि या रोटी में नमक लें या फिर सालन में नमक लें, कोई एक चीज आपकी नमक के बगैर होनी चाहिए। क्योंकि जो आप एवरेज इन्होंने कहा है कि जो यूके है कंज्यूम करता है पेशेंट 8 to 12 ग्राम्स ना, तो हम तो रोटी और जो है सालन दोनों में अगर यूज कर रहे हैं तो ये तकरीबन इतनी क्वांटिटी हमारी बन जाती है। तो हमारा टारगेट ये है कि हमने लेस देन 6 ग्राम्स पर डे यूज करना है, आइडियली 3 ग्राम्स पर डे यूज करना है। ये तकरीबन 2 से 3 चुटकी नमक होता है। तो पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि या रोटी के अंदर या सालन के अंदर किसी एक चीज में नमक अवॉइड करें। ठीक है, कैफीन अवॉइड करनी है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल जो है लेस करना है उसकी क्वांटिटी को, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो। अच्छा जी, उसके अलावा ये वही मैंने आपको बताया है कि अगर एज इज लेस देन 80 ईयर्स तो आपके पास क्या टारगेट होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है इन्होंने बताया है कि you have to offer the drug treatment regardless of the age in stage 2 hypertension of ambulatory blood pressure measurement। I think मैंने इसकी शायद स्लाइड नहीं डाली कि स्टेज 2 ambulatory कौन सा ब्लड प्रेशर होता है। सॉरी, आई forgot to mention that slide in this ये जो है आप डेविडसन के अंदर पढ़ लीजिएगा, मुझे अभी सही से रिकॉल भी नहीं हो रहा, लेकिन आई विल मेंशन यू द पेज के कहाँ पर जो है ये मेंशन है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, मैं ये इंशाल्लाह ग्रुप पे डाल दूंगी, वही आप लोग जो है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपके पास जो स्टेप 1 ट्रीटमेंट है उसमें क्या है, पेशेंट इज लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज तो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस इज एस इनहिबिटर। अगर पेशेंट इज ग्रेटर देन 55 ईयर्स ऑफ एज या पेशेंट इज एफ्रो कैरेबियन ओरिजिन तो ड्रग ऑफ चॉइस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। रिमेंबर, diuretics are never first choice, beta blockers are never first choice। जब पेशेंट 55 से कम है तो एस इनहिबिटर आपके पास चॉइस है, पेशेंट 55 से ज्यादा है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर चॉइस है। लेकिन एक्सेप्शंस है, अब अगर कोई चाइल्ड बेयरिंग एज वुमन है उसमें आप ऑब्वियसली एस इनहिबिटर्स नहीं देंगे, एस इनहिबिटर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। और इसी तरीके से आपके पास जो एफ्रोकैराबेन्स हैं उसके अंदर क्यों बेशक द पेशेंट इज लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज एस इनहिबिटर्स नहीं देते, क्योंकि उनका ऑलरेडी रेनिन लेवल कम होता है। तो जब रेनिन ही कम होगा तो एस इनहिबिटर्स ने किस पे काम करना है। ठीक है, इसीलिए दे डोंट रिस्पॉन्ड टू एस इनहिबिटर्स, तो योर चॉइस इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखें। स्टेप 2 ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आप पेशेंट है इसे कंट्रोल नहीं हुआ सिंगल ड्रग से तो आप ए को सी के साथ प्लस कर देते हैं। स्टेप 3 ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि अगर अभी भी कंट्रोल नहीं है ब्लड प्रेशर तो देन यू ए प्लस सी प्लस डी, यानी आप एक डायूरेटिक ऐड कर देते हैं। अब नाइस नाउ एडवोकेट यूजिंग ईदर क्लोरथैलिडोन दैट इज 12.5 to 25 मिलीग्राम वंस डेली या इंडापामाइड 1.5 मिलीग्राम मॉडिफाइड रिलीज वंस डेली और 2.5 मिलीग्राम वंस डेली इन प्रेफरेंस टू अ कन्वेंशनल थायजाइड डायूरेटिक सच एज बेंड्रोफ्लूमिथाइजाइड। मतलब जो कन्वेंशनल थायजाइड है उनकी निस्बत जो है क्लोरथैलिडोन और इंडापामाइड प्रेफरेबल है। अब ये तो आपकी 3 ड्रग थेरेपी होगी। और नाइस डिफाइंस अ क्लिनिकल बीपी ग्रेटर देन 140 by 90 millimeter of mercury after step 3 treatment with optimal और बेस्ट टॉलरेटेड डोजेस एज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की जो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया, क्या डेफिनेशन है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की, कि सेकेंडरी कॉजेज को तो आपने निकालना है। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन को आप उस वक्त रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन लेबल करते हैं जब वो जो है मैक्सिमम 3 मेडिकेशंस ले रहा हो विद देयर बेस्ट टॉलरेटेड डोजेस। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, इसको जो है नोट करें। एंड अब यहाँ पर जब है आपके पास स्टेप 4 ट्रीटमेंट आ जाती है, अब 3 पे भी नहीं है तो आप स्टेप 4 पे जाएंगे। स्टेप 4 में आप क्या करते हैं, आप एक और डायूरेटिक ऐड करते हैं। मतलब थायराइड डायूरेटिक्स तो वैसे भी यूज होते हैं आपके पास फॉर ब्लड प्रेशर, लेकिन अब कौन सा डायूरेटिक आपके पास आ रहा है,
स्पाइरोनोलेक्टोन आ रहा है, उसमें आपने पोटेशियम लेवल देखना होता है, क्योंकि स्पाइरोनोलेक्टोन इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, ठीक है। तो अगर पोटेशियम 4.5 से कम है तब तो आप स्पाइरोनोलेक्टोन ऐड कर दें, लेकिन अगर पोटेशियम 4.5 से ज्यादा है तो यू कैन increase the dose of the thiazide like diuretic. You don't add spironolactone because it will lead to hyperkalemia. फिर ACE inhibitor भी पेशेंट को दे रहे हैं, ACE inhibitor भी hyperkalemia करता है। इन पेशेंट्स के अंदर रीनल डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं तो वो भी hyperkalemia करेगा। आप एक और पोटेशियम स्पेयरिंग दे दें तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। इन फर्दर डायूरेटिक थेरेपी इज नॉट टॉलरेटेड और इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इनइफेक्टिव, तो तब जो है आप अल्फा या बीटा ब्लॉकर कंसीडर करते हैं। एंड बीपी इज स्टिल नॉट कंट्रोल, देन सीक स्पेशलिस्ट एडवाइस। उसका मतलब है कि आप जो है कार्डियोलॉजी यूनिट को जो है रेफर कर दें, पेशेंट के ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये टेबल है आपका, इसमें भी तकरीबन वही बातें बताई गई हैं। मैं इसलिए इनको बार बार रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको जो है ये वैल्यूज याद रहें। अब जो है अगर आपके पास एक पेशेंट है, उसका क्लिनिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो पेशेंट इज टर्म्ड एज नॉर्मोटेंसिव। अगर क्लिनिक ब्लड प्रेशर उसका 140/90 से ज्यादा है तो तब उसको हम लेबल करेंगे हाइपरटेंशन। क्लिनिक ब्लड प्रेशर उसका 180/110 से भी ज्यादा है तो तब जो है आपके ऑप्शन थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। अगर क्लिनिक ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का 140/90 से ज्यादा है, आपने क्या किया, आपने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट को हो सकता है कि ये वाइट कोट हाइपरटेंशन हो, तो आप उसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट या होम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का ऑफर देते हैं। एंड देन यू ऑफर टू असेस कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड टारगेट ऑर्गन डैमेज, यानी आप इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जितनी भी बेस लाइन है, आपने लिपिड प्रोफाइल कराई, आपने जो है ब्लड शुगर कराया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, आपने ईसीजी कराई, एकोकार्डियोग्राफी कराया और चेस्ट एक्सरे कराया। उसके बाद आप देखते हैं अगर एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट जो है वो 135/85 से कम है तो पेशेंट इज टर्म्ड एज नॉर्मोटेंसिव, हालांकि इनिशियल क्लिनिकल रीडिंग 140/90 से ज्यादा थी। अगर जो है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज्यादा हो तो दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन, ठीक है। वैसे आपके पास स्टेज 1 हाइपरटेंशन क्या था, मोर देन 140 और डायस्टोलिक मोर देन 190, तो एम्बुलेटरी वाला का ये स्टेज 1 है। ये जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी ये इसी के अंदर मेंशन है, यानी कि जो आपकी एम्बुलेटरी जो आपने ये वाली जो अभी पढ़ी ना, आपकी जो क्लिनिक ब्लड प्रेशर रीडिंग्स होती हैं, उसके अंदर जो हमने ग्रेडिंग्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर 140/159 है तो ग्रेड 1 है, अगर 160/179 है तो ग्रेड 2 है, और अगर ग्रेटर देन 180 है तो वो तो ग्रेड 3 हाइपरटेंशन यानी कि सिवियर हाइपरटेंशन है। लेकिन जब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर आप पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसका स्टेज 1 क्या होगा, दैट इज नॉट 140, 140 में से 5 माइनस करें 135, 90 में से 5 माइनस करें 85, मतलब 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आपने कम रखना है। और सिमिलरली अगर ये 150/95 से ज्यादा है तो दिस इज स्टेज 2 हाइपरटेंशन। तो ये जो एम्बुलेटरी वालों की जो है स्टेजेस ये हैं, और जो क्लिनिक में जो आप बीपी देखते हैं उसकी जो 3 स्टेजेस हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर अगर है पेशेंट का ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है, इफ द टारगेट ऑर्गन डैमेज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज 20% से ज्यादा है तो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट देनी है। सिमिलरली अगर एम्बुलेटरी 150/95 से ज्यादा है तो आपने जो है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन अगर पेशेंट लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज है और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर स्टेज 1 हाइपरटेंशन है तो यू कैन सिंपली आस्क द पेशेंट फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि वो भी जो है 15 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी वैसी ब्लड प्रेशर को लोअर कर देगा, ठीक है। एंड यू ऑफर पेशेंट एजुकेशन एंड इंटरवेंशंस टू सपोर्ट एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, एंड यू ऑफर एनुअल रिव्यू ऑफ द केयर टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर। तो आपने एनुअली पेशेंट को एक दफा जब एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट करा दी तो आइडियली एक एनुअल रिव्यू उसका बनता है, ठीक है। और वैसे भी अगर एक पेशेंट है 40 ईयर से ज्यादा है तो आपने उसका एक ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग एवरी 5 ईयर्स जो है करनी है। की टारगेट जो है मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ ये जो है रिकमेंडेशंस है ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैंने इसमें ऐड किया था।
इसमें जो है आपकी जो जीएनसी है, जीएनसी गाइडलाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन से रिलेटेड। ये मे बी फाइनल ईयर के लेवल पे ना पूछे, लेकिन आगे आपको पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन में जो जीएनसी है, दैट इज जॉइंट नेगोशिएटिंग कमेटी, उसकी जो है इंपॉर्टेंस है। जीएनसी 8 भी अभी खैर आगे, इसमें जीएनसी 7 इन्होंने मेंशन किया हुआ है, काफी टाइम से आया हुआ है। और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, दे गाइडलाइन रिकमेंड अ टारगेट बीपी ऑफ लेस देन 140 by 90 millimeter of mercury in non-diabetic patients with cardiovascular disease। लेकिन अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज के साथ, सीकेडी के साथ, या उसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे कि आईएचडी वगैरह है, तो ब्लड प्रेशर टारगेट आपका 130 by 85 है, और नॉन डायबिटिक पेशेंट में 140 by 90। तो ये जो है ये आपका एमसीक्यूज इससे ज्यादातर बनते हैं। वैसे तो डेविडसन के अंदर वो जो एक उन्होंने लेस देन 80 ईयर्स, और ये जो यहाँ पर ये वाला जो टारगेट मैंने लिखा हुआ है ना, ये डेविडसन के अंदर मेंशन है कि आपका जो है इसमें आप बेशक एम्बुलेटरी वाले याद ना रखें, लेकिन 140 by 90 तो है कि इन्होंने लेस देन 80 है तो 140 by 90 आपने किया, और ग्रेटर देन 80 है तो 150 by 90 आपका टारगेट है। लेकिन अगर पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट अगर होगा तो उसके अंदर आप टारगेट जो है 130 by 85 रखेंगे, और अगर पेशेंट को सीकेडी होगा या सीवीडी होगा तो फिर आपका टारगेट इज 130 by 85। अदरवाइज वही आपके जो डेविडसन के अंदर मेंशन है कि लेस देन 80 इयर्स ऑफ एज है तो टारगेट वुड बी 140 by 90। लेकिन अगर पेशेंट को डायबिटीज है, सीकेडी है, स्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो आपका टारगेट क्या होगा? तब आपका टारगेट वुड बी 130 by 85। ऑल राइट, सो वी आर डन विद द हाइपरटेंशन। अब जो है ये एमसीक्यू कोई आंसर करे so that we end the presentation. Anyone? प्लीज वी गेट शॉर्ट ऑफ टाइम देन ना, पे अब एमसीक्यू भी खुद आंसर करूंगी तो उसका क्या फायदा है? आप आंसर खुद करें आप लोग एमसीक्यू। आई विल हेल्प यू इन दैट, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। आयशा प्लीज आप इसको पढ़ें और इसको आंसर करें। Yes, ma'am. A 32-year-old woman has persistently raised blood pressure measurement over the past 6 months. Her systolic blood pressure readings had ranged from 158 to 170 mmHg, and diastolic blood pressure reading between 90 to 98 mmHg. She was asymptomatic. She was not on any medication, including oral contraceptives. There was no past medical history of note or any family history of hypertension. Physical examination did not reveal any abnormalities other than blood pressure reading of 160 by 96 mmHg. Blood pressure, blood urea, and electrolytes were normal. What's the most possible cause of her hypertension? ठीक है, तो क्या है इसका कॉज हाइपरटेंशन का? Ma'am, it's the most probable essential hypertension. एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, दिस इज एसेंशियल हाइपरटेंशन। हालांकि आप एज देख रहे हैं 32 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 32 ईयर्स ऑफ एज इज वेरी यंग फॉर एसेंशियल हाइपरटेंशन, बट स्टिल इसकी सारी चीजें नॉर्मल है। अगर ये प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म होता तो इसके इलेक्ट्रोलाइट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा होता, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के अंदर भी उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में फाइंडिंग्स होती हैं, अगेन उसकी भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल नहीं मिलेंगे। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के अंदर अल्ट्रासाउंड एबनॉर्मेलिटी कोई मिलेगी, और फिजिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्या मिलेगा? रीनल ब्रूई मिलेगी। और इसके अलावा एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है ना, उसका हाइपरटेंशन 5th डिकेड में जाके प्रेजेंट करता है, उससे पहले पेशेंट जो है नॉर्मोटेंसिव होता है। एक्सीलेंट आयशा, ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज डन, वी आर डन विद द हाइपरटेंशन। इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द रूमेटिक हार्ट डिजीज, और जितने भी आपकी वेल्वुलर हार्ट डिजीज है आई विल ट्राई टू कवर देम। लेक्चर्स थोड़े लंबे हो जाते हैं, अदरवाइज मेरे लिए ज्यादा टॉपिक्स कवर करना इज नॉट टफ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटेंशन एंड व्हेन टू ट्रीट stages of hypertension, when do you what is the definition of malignant hypertension, what is the definition of accelerated hypertension। ऑलराइट, दो टर्म्स मैं इसमें वैसे आज मेंशन करना भूल गई। व्हाट इज difference between hypertensive emergency and hypertensive urgency? This is your task, and any volunteer इसने जो है hypertensive emergency and hypertensive urgency की जो है definitions पोस्ट करनी है ग्रुप में। अगर आप लोगों ने नहीं की तो अल्टीमेटली मैं ही कर दूंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों में से कोई करेगा तो आई वुड अप्रिशिएट। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।